theorem, right? Like in the cubic equation, as it's given, alpha, beta, and gamma are the roots. So we know that alpha cube is equal to minus alpha square plus 333 alpha plus 1002. Similarly, beta cube is equal to minus beta square 333 beta plus 1002, and gamma cube is equal to minus gamma square 333 gamma plus 1002. If I'll add these three numbers, right, these three equations we are adding, so I'm getting alpha cube plus beta cube plus gamma cube is equals to minus of alpha square plus beta square plus gamma square plus 333 alpha plus beta plus gamma plus 3006. Let's assume Sn, this is the key point. Let's assume Sn is equal to alpha to the power n plus beta to the power n plus gamma to the power n. I'm not only solving for cube, I'm saying let's go for any number n, right? So if I'm writing this for n, I can rewrite this as S3, this having power 3, so S3 is equal to alpha cube minus S2 plus 333 S1 plus 3006. Is it okay? This is what is S1, S2, S3. So obviously, I know the value of S1 means alpha plus beta plus gamma is nothing but minus B by A. S2 means alpha square plus beta square plus gamma square is nothing but alpha plus beta plus gamma, the whole square minus twice of alpha beta, beta gamma, and gamma alpha. Similarly, I can find the values of others, right? So here, in this case, what is the value of S1? Sum of the roots, right? This is minus 1 only. 1 minus twice of 333. Is S2. Put the value of S1 and S2, right? We'll get S3 as minus S2 plus 333 into S1. S1, that was minus 1 plus 3006. 1000, so this is getting 2006, something like this. S3 is coming. But see the solution, this is very important. This is known as न्यूटन थ्योरम. जब मैंने ये अज्यूम किया और वहां से क्वेश्चन को ड्रैग किया, right, you have to assume and drag it out the equation S1 S2 S3. बहुत बड़े पावर के लिए भी when you have to solve, you can solve this in the easiest format. Okay, so one question on this only. Alpha, beta, gamma are the roots of x cube plus qx plus r is equal to 0. Then prove that
सेकंड क्वेश्चन में मोर प्रिसाइजली आई शो यू कैसे एस एन का लेना बहुत अधिक हेल्प करता है। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने क्यूबिक का केवल दिया था, तो विदाउट एज्यूमिंग दैट ऑल्सो यू कैन गेट द आंसर, बट सेकंड क्वेश्चन में कहानी थोड़ी अच्छी जाएगी। ओके, मैं स्टार्ट करूं। सी, क्वेश्चन में गिवन है एक्स क्यूब प्लस qx plus r is equal to 0. I can say alpha cube is equal to minus q alpha minus r, beta cube is equal to minus q beta minus r, gamma cube is equal to minus q gamma minus r. राइट, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने अल्फा टू द पावर n से, सेकंड इक्वेशन को बीटा टू द पावर n से, थर्ड इक्वेशन को गामा टू द पावर n से मल्टीप्लाई करके तीनों को ऐड कर दिया, एंड आई एम अज्यूमिंग Sn is equal to alpha to the power n plus beta to the power n plus gamma to the power n. ये दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, आई एम गेटिंग एस एन प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस क्यू एस एन प्लस 1 माइनस आर इंटू एस एन। आर इंटू एस एन, राइट। ये रिलेशन मेरे पास एक आ गया जिसको मैं बोल सकता हूँ एस एन प्लस 3 minus q Sn plus 1 minus r into Sn, where S1 is 0, right? Alpha plus beta plus gamma. S2 is alpha plus beta plus gamma the whole square minus 2 alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. 0 minus 2 q. So S2 is 2q, right? एस नॉट की वैल्यू अगर मैं बोलूं, एस जीरो की वैल्यू अगर देखूं तो एस जीरो की वैल्यू मेरे पास आ रही है सभी के पावर जीरो, दैट इज राइट 1 + 1 + 1 विल बी 3, राइट। सो अब S1 S2 S3 मतलब S1 एस नॉट ये है। S3 की वैल्यू निकालनी है तो n इजिकल टू मैं जीरो रखूं तो S3 की वैल्यू आ गई माइनस क्यू इंटू S1 माइनस आर इंटू Sn एस नॉट, राइट। तो S3 की वैल्यू -3r आ गई, राइट। अब आपके पास S1 S2 S3 आ गया तो मेरे को S5 निकालना है, तो मैं n की वैल्यू जैसे 2 रखूंगा तो S5 इज इक्वल टू माइनस क्यू S3 माइनस आर S2, तो S5 इज इक्वल टू माइनस S3 इज -3QR minus R S2 is 3, so this is 3R. 2QR, एंड विथ माइनस साइन था तो S5 की वैल्यू आ गई 5QR। S3 की वैल्यू मेरे पास है पहले से -3R। S2 की वैल्यू मेरे पास है -2Q।
ध्यान से देख सकते हैं आप क्वेश्चन को, कितने भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो यू कैन सॉल्व दिस इन इजीएस्ट वे। S2 should be -2q, right? हाँ बेटा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर आगे में वही लिखा हुआ है। डू इट फास्ट। होप सभी को पता चल गया होगा एग्जैक्टली न्यूटन थ्योरम कैसे यूज होने हैं। Done everyone? Yes, sir. Done. If done, write down yes. मैं आगे बढ़ पाऊं। Okay, now trigonometrical substitution to solve cubic equation, right? अब ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन के साथ में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास अच्छे क्वेश्चंस आ जाएंगे जो बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को। जैसे राइट, साइन कॉस के फॉर्मूलाज के साथ में हमें यूज करना है, साइन कॉस का फॉर्मूला कैसे यूज करना है, तो जल्दी से रिकॉल सभी लोग करें। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या था? राइट डाउन इन चैट, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या था? ओके, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, वैसा ही साइन के लिए भी था, राइट। तो इनको यूज करने का बड़ा अच्छा सा तरीका होता है, कभी कभी आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं।
डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाने का मतलब क्या है ये समझना। जैसे मैंने दे दिया होता 4x³ minus 3x is equal to half, right? 4x³ minus 3x is equal to half, then solve for x. x की क्या वैल्यूज होगी? ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा, बट इफ यू नो कि आपको फॉर्मूला जैसे मैंने अभी तुरंत आपको बोल दिया, तो आप जानते हो कि x की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ सीधा cos थीटा, राइट? x इज इक्वल टू cos थीटा पर 4 cos³ थीटा minus 3 cos theta is equal to half, means cos 3 theta is equal to 1/2, right? And cos, right, 1/2 कब होता है, right? pi by 3 पे। तो cos of this plus minus pi by 3, theta is equal to 2n pi by 3 plus minus pi by 9। तो आपको कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि नंबर्स को देख के, उसके नेचर को देख के यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कुछ अपने काम का चीज निकल सकता है, राइट? साइन में है या कॉस में है, यूजुअली वी कैन कन्वर्ट दिस एंड डायरेक्टली वी कैन गो फॉर दिस। लेकिन ये तो तब की बात मैंने करी जब यहाँ पर परफेक्टली यहाँ पर नंबर 4 और 3 यहाँ पर विल एस्टैब्लिश है एंड देन वी आर गोइंग टू डू समथिंग, ये हम लोग बात कर रहे हैं, राइट? लेकिन अगर मैं ये एस्टैब्लिशमेंट को थोड़ा डिस्टर्ब करूं, लेट सेकंड केस आई एम सेइंग x³ minus 3x is equal to some a is in the range of, जिसमें -1 से 1 आ जाए, राइट? अब यहाँ पर आपको x की वैल्यूज अगर निकालनी हो तो क्या करोगे, क्या बोलोगे, आप कैसे निकाल सकते हो? cos थीटा sin थीटा क्या सब्स्टिट्यूट हो पाएगा? आयुष क्या सुन रहा, पूछना चाह रहे हो बेटा? एक बार जो हैंड, यस। सर हमें इंटीग्रल वैल्यू मिलेगी क्या फर्स्ट क्वेश्चन में, जैसे 2 to 3? गलत क्वेश्चन नहीं हो गया बेटा? अगर इंटीजर मैं पुट करूंगा तो ये दोनों इंटीजर हैं, इंटीजर प्लस माइनस इंटीजर इंटीजर होगा और राइट साइड दिया हुआ फ्रैक्शन है। हाँ सर, गलत क्वेश्चन। राइट? आप साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक जो भी चाहें यूज कर सकते हैं। यस हीटांस, want to ask something? x is equal to 2 cos theta, राइट? 2 cos थीटा अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 8 cos³ थीटा माइनस 6 cos थीटा इज इक्वल टू ए अपना गिवन रहेगा, 2 कॉमन ले लिया, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू a/2, और इसकी वैल्यू होती है cos 3 थीटा इज इक्वल टू a/2। 3 थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos इनवर्स a/2, 1/3 इधर आ जाएगा। इज इट ओके? नोट डाउन प्लीज। जब 4 मेरे पास नहीं गिवन था तब भी 4 को कहीं से हम लोग एडजस्ट कर सकते थे, किस तरह से सब्स्टिट्यूशन किया उसको ध्यान में रखो। मतलब x³ माइनस 3x का कंडीशन भी अगर गिवन है तो अपने लिए काम कर सकता है, आराम से हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, ये सेकंड के बाद मैं चाहूंगा एक थर्ड आप फिर सोचें। अगर इसमें मैंने इस बार बोला कि नहीं 3 भी नहीं है, this is only x³ minus x is equal to some constant b,
तब कैसे आप सॉल्व कर पाओगे ये बताएं। ओके एनीवन, कोई कुछ हेल्प करोगे यहाँ पे? राइट, अभी भी मेरे को यूज करना है, जानता मैं वही हूं कि कॉस या साइन में इसे लाने हैं। राइट, वेरी गुड हितांश। आपने कहा 3 cos थीटा, उससे काम तो नहीं बनेगा क्योंकि मेरे को आंसर जो लाने हैं वो लाने हैं 4 cos क्यूब माइनस 3 cos थीटा में। 4 cos क्यूब माइनस, राइट, 4 लाने के लिए मैंने कहा 2 cos थीटा, एंड ये वाले में 3 लाने के लिए मैंने कहा √3। ये x को एक बार सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 2 cos थीटा बाई √3। राइट, 2 cos थीटा बाई √3 अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा ये आएगा 8 cos क्यूब थीटा अपॉन 3 √3 माइनस 2 cos थीटा बाई √3 इज इक्वल टू b। अगर मैं 2 बाई √3 कॉमन ले लेता हूँ और उस तरफ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 √3 के साथ, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये गया 3 √3b बाई 2, मीन्स cos 3 थीटा इज इक्वल टू 3 √3b बाई 2। ये सब्स्टिट्यूशन को ध्यान से देखें। ओके, यस सर। अगर ये सही लग गया, बहुत सारी चीजें मैंने कहानी कर दी, तो मैं अब चाहूंगा इसको अप्लाई करते हुए आप लोग इसके आंसर निकालें। सॉल्व दिस।
डन। डन। मैं ट्राई करूं? जो 3-4 मेथड बताएं, सोचिए क्या सब्स्टिट्यूशन हो। आखिरी में क्वेश्चन कहानी वही बननी है, 4x³ माइनस 3x। बहुत आसानी से क्वेश्चन होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान दे। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैं करता हूं। पहले यहाँ समझ में नहीं आ रही कुछ, तो ऐसा करता हूँ, x को 3 cos थीटा या 3t पुट करता हूँ। 3t पुट करने पर यह आ गया 27t³ माइनस 27 इंटू 3t प्लस 27 इज इक्वल टू 0। 27 हटाया मैंने, t³ माइनस 3t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब लगता है कुछ काम बन सकता है, राइट? क्या कि मैंने अब t के जगह पर 2 cos थीटा अगर डाला तो 8 cos³ थीटा माइनस 2 इंटू 3 cos थीटा इज इक्वल टू -1 और ट्वाइस ऑफ cos 3 थीटा इज इक्वल टू -1 cos 3 थीटा इज इक्वल टू -12, क्योंकि होता है cos 2π/3। फर्स्ट टाइम पर अगर बोलूँ तो, या 3 थीटा की वैल्यू 2nπ प्लस माइनस जो भी रहा 2π/3। थीटा इज इक्वल टू 2nπ/3 प्लस माइनस 2π/9। मैं इसे तो अब तो सिंपल ही रेट करना चाहिए मेरे को। ओके ओके एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. एक और इस तरह का क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा। प्रूव दैट cos π/7, cos 3π/7, cos 5π/7 are the roots of 8x³ minus 4x square minus 4x plus 1 is equal to 0। आप लोग ट्राई करना चाहोगे या मैं सॉल्यूशन दे दूं? नहीं सर, एक मिनट। Sir, 1 minute. मैं सजेस्ट करूंगा सब लोग जाएं, एक एक बार जल्दी से चेहरे पे थोड़ा पानी डाल के आए, थोड़ा फ्रेश होगा, फास्ट तरीके से दिमाग चलेगा।
वेरी गुड, वेरी गुड। थॉट ये हो सकता है कि सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम, प्रोडक्ट टेकन थ्री एट ए टाइम करते हुए हम लोग वर्किंग करते हुए इसे सॉल्व कर लें, राइट। लेकिन ध्यान से देखो, ये तीनों जो मेरे पास गिवन है, π/7, 3π/7 एंड 5π/7, ये तीनों को देखते हुए हमने एक ये डिसीजन लिया कि लेट 7 थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, राइट, और 4 थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई माइनस 3 थीटा, राइट। दोनों तरफ हमने साइन ले लिया, sin 2n pi odd numbers minus 3 theta will be again sin theta, right। sin 4 theta को लिख सकता हूँ 2 into sin 2 theta into cos 2 theta, right, and this is right accordingly we can go for sin 3 theta, right। sin 3x का फॉर्मूला जल्दी से लिखो, होप सभी को याद होगा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब, राइट। अब यहां से इसे भी ओपन करूंगा तो 2 sin थीटा, तो ये चला गया 4 cos थीटा, sin थीटा कैंसिल भी कर दिया, cos 2 थीटा को लिख दिया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, राइट, ये रख दिया। ओवरऑल cos थीटा को t ले लूं तो 8 t क्यूब माइनस माइनस प्लस माइनस 4 t स्क्वायर माइनस 4t 3 प्लस 1 4 के साथ में 1। आई गेस यही आपको प्रूव करना था, डायरेक्ट आपके सामने आपका आंसर है। ये मेथड को प्रेफर करो, आसान पड़ेगा। ओके, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? सर 1 मिनट। यस सर। नेक्स्ट एक और छोटा सा टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ, राइट। कॉमन रूट्स याद होगा, क्वाड्रेटिक के लिए हमने कॉमन रूट्स जो पढ़ा था, अब वही हम लोग यहाँ पर पॉलिनोमियल्स के लिए वर्किंग करने जा रहे हैं, राइट। पॉलिनोमियल्स हो सकता है बहुत बड़े पावर्स हों और उनके साथ में वर्किंग करना पड़े, एक 4 पावर को 3 पावर के साथ, 6 पावर को 2 पावर के साथ, राइट। ये वर्किंग हमारे पास हमेशा काम कर जाता है, राइट। अमोग ये मैंने इस तरह से डिसाइड किया बेटा कि ये जो गिवन इक्वेशन है अगर उसको ध्यान से देखो तो एक पैटर्न तीनों में फॉलो हो रहा है, राइट। π/7, 3π/7 एंड 5π/7, राइट। वो पैटर्न को देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि ये और डिग्री इसका मतलब 1 3 5 तीन ही रूट्स आ रहे हैं, 3 रूट्स आ रहे हैं, तो मेरे को ये ख्याल है कि अगर मैं 7 थीटा इज इक्वल टू ले जा रहा हूँ और 4 थीटा रखते हुए दोनों तरफ वर्क करूंगा तो सेकंड स्टेप पे मेरे को ये मिलेगा, अगर साइन में लेता हूँ तो एक साइन थीटा कैंसिल होने के बाद मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन आएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये जो भी दिया हुआ है ऑड बाई 7, उसमें 7 थीटा को 2n प्लस 1 पाई ले लिया,
ओके सर राइट। तो मैं 0 रखा, तो उसकी वैल्यू फिर 1 और फिर 2, n की वैल्यू। हाँ बेटा, तभी वो तीनों वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे। राइट, कॉमन रूट्स पॉलिनोमियल के लिए अगर है, राइट, वर्किंग कुछ वैसा ही रहेगा, बट थोड़ा आपको ख्याल रखना पड़ेगा व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। समथिंग, मान लो फर्स्ट एक क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन ओके। ये दोनों के कॉमन रूट्स के बारे में आपको बताना है कि व्हाट आर द कॉमन रूट्स ऑफ दिस। सर आंसर भेज दिए। वेरी गुड सागर, वुड यू एक्सप्लेन दिस, क्या किया आपने? सर पहले वाले को एफ ऑफ एक्स लिया, दूसरे वाले को जी ऑफ एक्स, तो उन दोनों के कॉमन रूट्स होंगे, तो उनके सब्ट्रैक्शन करने पे दोनों इक्वेशन के तो भी कॉमन ही आएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों ऐसा आ रहा है? बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि इफ अल्फा बीटा, अल्फा इज अ रूट ऑफ दिस, राइट, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो ये अल्फा बीटा 1 गामा 1 डेल्टा 1 है, तो अल्फा 1 के लिए बोथ विल सेटिस्फाई, तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तब भी वो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो डायरेक्टली अगर सब्ट्रैक्ट करता हूं तो जितनी बार भी मैं सब्ट्रैक्ट हो सकता है, जितनी बार भी ये हो पाएगा मैं करता जाऊंगा, एंड वहां से मेरे को आंसर भी आने चाहिए 4x³
plus 18x square minus 66x plus 108 is equal to 0. Something like this. 2b पूरा comma 4 r, से डिवाइड कर देंगे. right? 2x cube plus 9x square minus 33x plus 54 is equal to 0, right? इसके रूट्स कुछ दिखाई दे रहे हैं तो हाँ शायद दिखाई दे रहे हैं. कैलकुलेशन चेक कर लें. राइट, इसके कुछ रूट्स निकल सकते हैं तो देखें क्या क्या रूट्स निकल सकते हैं. ओह, क्वेश्चन में थोड़ा सा एक मिसप्रिंट हो गया है. दैट्स द रीजन इट वाज नॉट कमिंग. ये 22, राइट? सो दिस विल बी कमिंग एज माइनस 2x स्क्वायर एंड 2 हटाने के बाद ये थोड़ा सा कुछ ऐसा आएगा. 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 33 plus 54 is equal to 0, right? X is equal to 2 is the solution for this. Yes, and 3 भी satisfy कर रहा है. 2 and 3, दो रूट्स मेरे पास 2 and 3 आ रहे हैं. थर्ड जो वैल्यू आ रही है वो सेटिस्फाई करेगी या नहीं देख लें. अल्फा इंटू 2 इंटू 3 माइनस 54/2, 9/2, राइट? 9/2 सेकंड वाले को सेटिस्फाई नहीं कर रही है. सो 2 and 3 केवल जो है वो मेरे रूट्स होंगे, राइट? तो सिंपल हमने कॉमन रूट्स की जो बात की, हमें दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हुए वहां से ही वर्किंग निकाल के रखनी है. वो क्यूबिक के साथ क्वाड्रेटिक हो या जैसा भी इक्वेशन जा रहा हो. ओके ओके. एक और यहाँ पर कहानी आती है, वो होती है जो डिफरेंशिएशन में हमें देखना पड़ेगा मल्टीपल रूट्स ना, एक से अधिक रूट्स हों तब के लिए हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी रहती है. दैट्स कॉल्ड द मल्टीपल रूट्स ना. लेकिन थोड़ा आगे चल के अभी जल्दी होगा थोड़ा ना. डिफरेंशिएशन में दिस विल वर्क. इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, राइट? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम. क्यूबिक इक्वेशन निकालने के बाद का अभी आपके पास यही मेथड है कि आपको हिट एंड ट्रायल तरीके से आपको लग सकता है, या इक्वेशन को आप देख सकते हैं कौन से उसके रूट्स आ रहे हैं, राइट? उसका फॉर्मूला जो होता है वो बहुत ही गंदा होता है. इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या है इसे समझना, राइट? ये बहुत ही सिंपल सा थ्योरम है बट बहुत इफेक्टिव है, राइट? कैसे ये दिखाता हूँ. लेट fx be a polynomial
राइट। पॉलिनोमियल होने का मतलब ये एक कंटिन्यूअस ग्राफ है, कहीं भी इसको ब्रेक नहीं मिल रहा है, राइट। ये कंटिन्यूअस ग्राफ है, उसको ब्रेक नहीं दिया जा रहा है, तब इसके रूट्स के बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं, राइट। लेट दो वैल्यूज मेरे पास आई, एफ ए एंड एफ बी आर two values on A and B respectively, right? Right? मैंने कोई भी एक पॉलिनोमियल है ऐसा अपने आप, राइट, इसमें मैंने एक ये लिया, ए पर ये आ गया, एफ ए दिख रहा होगा कहीं यहाँ पर, उसी के कंटिन्यूटी पे बी पर आ गया जो एफ बी। तो ए रखने पर मुझे फंक्शन एफ ए दे रहा है, बी रखने पर मुझे एफ बी वैल्यू मिल रही है। if FA and FB are opposite in sign, right? FA and FB are opposite in sign, हाँ, दोनों के साइन अलग अलग हों, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव हो, then at least one root or odd number of roots lies between A and B, राइट। ये है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ये बड़ा काम का चीज है, कैसे वो पता चलेगा थोड़ी देर में, पहले इसे नोट करते हैं। डन। Yes, sir. इस थ्योरम को बड़े अच्छे से हम लोग ये कर सकते हैं कि जो भी हमारे रूट्स की बात हो रही है, लाइक कोई इक्वेशन मैंने दे दिया कि रूट्स किसके बीच में है या कहाँ पर लाई कर रहा होगा, लाइक 10x³ माइनस 17x² प्लस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, राइट। मैं अज्यूम करता हूँ यही मेरा fx एक इक्वेशन गिवन है, राइट। f0 पर मुझे साफ दिखाई दे रहा है वैल्यू 6 आ रही है जो कि पॉजिटिव है, राइट। f1 ऑब्वियसली 1 पर ये क्या आ रहा है, राइट। दिस इज 10
-17 प्लस 1 प्लस 6, तो दिस इज 0, मतलब 1 तो इसका रूट है ही है, ये रूट हो गया। एफ ऑफ -1 पर वैल्यू क्या होगी? -10 -17 -1 प्लस 6 जो कि लेस देन 0 हो गया, राइट। कुछ बातें मुझे पता चल गई इस क्यूबिक इक्वेशन के बारे में। एक ये रहा कि 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इसका 1 इज द रूट, राइट। 0 पर ये पॉजिटिव है, 1 इसका रूट है, राइट। एंड बहुत बड़ी वैल्यू अगर मैं रख रहा हूं, कोई भी बहुत बड़ी वैल्यू ना 100 200 1000 करोड़, सो ये भी पॉजिटिव आएगा, राइट। 1 पर 0 है, आगे की वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है, राइट। एंड इसके बाद मेरे को पता चल रहा है कि अब 0 पर भी ये पॉजिटिव है, राइट। एंड इसके बाद ये नेगेटिव, -1 पर ये नेगेटिव है। कुछ ऐसा, राइट। मतलब कि F0 पर और F-1 के बीच में, मतलब -1 से 0 के बीच में एक रूट आएगा, ये तो कंफर्म है। एग्जैक्टली 1 इसका एक रूट है। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये पता करना मेरे लिए बहुत आसान होगा कि दो नंबर के बीच में ये रूट्स आ रहे हैं, वो रूट्स क्या हो सकते हैं। ये शायद मुझे ना भी पता रहे, बट ये एक्चुअल मैं बता सकता हूँ कि दो नंबर्स के बीच में इसके रूट्स आ रहे होंगे। लेकिन इसका यहाँ से यूज बहुत अधिक बढ़ जाता है जब मैं दो कर्व की बात करता हूँ। याद होगा अगर आप लोगों को, तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमने ग्राफ का हेल्प लिया था ना, ग्राफ का हेल्प लिया था उस तरह के क्वेश्चन में जब मुझे केवल ये बताना था कि इसके रूट्स होंगे, कितने रूट्स होंगे, राइट। लाइक 3 to the power x plus 4 to the power x plus 5 to the power x is equal to 6 to the power x, राइट। तो यहाँ पर इस तरह के ग्राफ के लिए हम लोग ये भी बोल सकते हैं, सी अभी मेरे पास 0 पर अगर मैं ले रहा हूँ ये फंक्शन, दिस माइनस दिस कर लिया, इसे फंक्शन ले रहा हूँ। अब 0 पर दिस इज पॉजिटिव, राइट। 1 पर भी ये पॉजिटिव है, राइट। 2 पर भी ये पॉजिटिव है, बट 3 पर ये 0 है और 3 के आगे ये नेगेटिव है। मैं ये बता सकता हूं कि 2 से 4 के बीच में लाई करेगा रूट्स। ऑब्वियसली 3 इसका रूट आ रहा है, तो 3 विल बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। बट जरूरी नहीं है कि हमेशा वो नंबर आ ही जाए उसके रूट्स हो, बट ये अच्छा तरीका हो सकता है कि बिटवीन द वैल्यूज हम लोग रूट्स को देख पाए, एग्जैक्टली इन बिटवीन रूट्स मेरे पास आ रहे होंगे, राइट। जैसे अब इसके क्वेश्चन को मैं दिखाता हूं आपको। f(x) is equal to x minus a x minus c plus twice of x minus b into x minus d, a b c d, ये रिलेशन मेरे पास गिवन है, राइट। इस तरीके से, राइट। अब आपको बताना है इसके बारे में, इसके रूट्स के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं, ये आप देखते हुए बताएं। इनके रूट्स के बारे में क्या कमेंट किया जा सकता है। थोड़ा ट्रिकी चीज है, इसलिए ध्यान से। ये क्वाड्रेटिक है, ये कंफर्म है। ये क्वाड्रेटिक जो कंफर्म है मेरे पास, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखना, मैंने कहा एक एक करके चेक करते हैं क्या हो रहा होगा। ए बी सी डी कोई भी 4 वैल्यूज है, मैंने पिक कर लिया, ए बी सी डी। एफ ए पर जो वैल्यू आ रही है ये है ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस डी। ए माइनस बी
नेगेटिव होगा, ए माइनस डी भी नेगेटिव होगा, तो ये दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया बी। फिर एफ बी पर मैं बात करूं तो एफ बी पर मुझे मिल रहा है बी माइनस ए बी माइनस सी, मतलब एफ बी पर ये नेगेटिव आ गया। एफ सी पर बात करूं सी माइनस बी सी माइनस डी, सी माइनस बी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, राइट, फिर से ये नेगेटिव है। एफ डी पर देखें डी माइनस ए डी माइनस सी दोनों पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हो गया। मतलब कुछ ऐसा मेरा ग्राफ चल रहा होगा, राइट। ऐसा ग्राफ चलने का मतलब ये रहा कि मेरे को एक रूट जो मिल रहा है वो मिल रहा है ए से बी के बीच में, दूसरा रूट जो मिल रहा है वो मिल रहा है सी से डी के बीच में, राइट। वन रूट इज लाइंग बिटवीन ए टू बी। बहुत आसान तरीका हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बट थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया चीज है, यूज टू होने में थोड़ा टाइम लगता जाएगा, बट यूजुअली चलता है, धीरे धीरे देखते जाओ इसे। नोट डाउन एवरीवन। हाँ यूज, इसका क्या यूज करोगे बेटा? उल्टा हो जाएगा साइन ना, ए बी सी डी ग्रेटर के फॉर्म में है, तो जैसे आप माइनस लगाओगे तो साइन रिवर्स हो जाएगा। ओके डन। तो ये जरूरी नहीं है ये केवल क्यूबिक क्वाड्रेटिक के लिए फॉर्म हो, ये कहीं के लिए भी फॉर्म हो सकता है, जैसे मैंने ऊपर भी क्वेश्चन में दिखाया। अगर एक क्वेश्चन मैं दूं आपको 1/x-1 1/x-2 1/x-3 1/x-4, राइट। ये गिवन है आपको और इसके रूट्स के बारे में बात करनी है। थोड़ा सा सोचो, टेक योर टाइम। ध्यान से देखो, इसका अगर मैं अच्छा सा ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ, राइट, कैसा ग्राफ बन रहा होगा, थोड़ा ध्यान से मैच्योरिटी के साथ देखना पड़ेगा। ये मेरे पास है, ये मेरे पास है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया 1 2 3 4। ध्यान दे 1 2 3 4 पर मुझे लाइंस बनाने होंगे जिसे हम लोग एसिम्प्टोट्स के नाम से जानते हैं। ये लाइन जो बनेगा वो कुछ बन रहा होगा ऐसा।
राइट, ये 4 हो गया। ये 4 मैंने ये बना लिया कि 1 2 3 4 ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 यहाँ पर ये राइट 1 2 3 4 राइट। 0 पर ऑब्वियसली दिस वैल्यू विल बी नेगेटिव, राइट। 1 पर अगर ध्यान से देखो तो 1/0 इनफाइनाइट चला जा रहा है, राइट। 1 से थोड़ा सा पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ 1 के, ऑब्वियसली बात है, राइट, कि 4 के पास से शुरू कर दे तो 4 के पास ये कहीं ऐसा इन्फिनिटी जब होगी तो इसकी वैल्यू 0 जा रही होगी, राइट। 4 प्लस 4 से थोड़े से ऊपर में 1/0 के बहुत ही पास में आएगा तो 1/0 टेंडिंग सो इनफाइनाइट चला गया। सेकंड 4 पर ऐसा 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 क्या हुआ इसको समझना ध्यान से। 4 से थोड़ा सा नीचे में अगर नंबर रखा हूं तो ये नंबर नेगेटिव इन्फिनिटी चली गई और सब फाइनाइट वैल्यू है, तो माइनस इन्फिनिटी के फाइनाइट वैल्यू को ऐड करने पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन 3 से थोड़े से ऊपर की मैं बात कर रहा हूं तो ये इनफाइनाइट चला गया और सब फाइनाइट वैल्यू है, तो ये कुछ ऐसा बन गया, राइट। सेम 3 और 2 पर भी हुआ, फिर 1 और 2 और 1 पर भी हुआ और 1 के बाद माइनस इन्फिनिटी पर ये 0 चला गया। तो अब ये ग्राफ जो है कितनी बार एक्सिस को कट किया, 1 बार 2 बार 3 बार। कहाँ से कहाँ के बीच में किया, एक बार किया 1 से 2 के बीच में, दूसरी बार किया 2 से 3 के बीच में, तीसरी बार किया 3 से 4 के बीच में। तो टोटल मेरे पास आ गए 3 रूट्स जो कि है लाइज बिटवीन 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। इज इट ओके? Anyone want to ask anything? सर हम्म सर जब हम थियोरम लिख रहे थे तब आपने कहा था कि पॉलिनोमियल में बीच में गैप्स नहीं होनी चाहिए थियोरम अप्लाई करने के लिए। हाँ, तो फिर हम इस पे वो थियोरम कैसे अप्लाई कर पाएंगे? इस तरह से अप्लाई, वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। इस तरह से अप्लाई कर पाएंगे कि 3 से 4 के बीच में केवल देखो, तो 3 से 4 के बीच में कोई गैप नहीं आ रहे हैं। तो कोई गैप नहीं आने का मतलब है कि 3 से 4 के लिए मैं ये स्टेटमेंट दे सकता हूँ कि 3 से बाद में और 4 के पहले एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव आ रहा है, तो दोनों के बीच में एक यहाँ पर रूट्स आ रहे होंगे, राइट। मैं केवल 2 से 3 के बीच में देख रहा हूं तो मैं बोल सकता हूं 2 से 3 के बीच में ये हो रहा होगा। मैं 1 से और 4 के लिए ये स्टेटमेंट नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि वहां पर कंटिन्यूअस नहीं है, राइट। मैं 0 के पहले की वैल्यूज को और 4 के पास की वैल्यूज को या 4 के बाद की वैल्यूज को लेके कोई स्टेटमेंट नहीं दे पा रहा हूं। मैं इसलिए हर एक ब्रेक में छोटे छोटे टुकड़ों में बात कर रहा हूं जहां पर ये कंटिन्यूअस है, जहां पर ये ब्रेक नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ओके सर। यस सर। ओके, डन एवरीवन, यस सर। राइट। नेक्स्ट, यहाँ पर यूज ऑफ एम जी एम एच एम जो होता है ना, वो यूज करते हुए हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो सॉल्व करने होते हैं या थोड़ा आगे के भी क्वेश्चंस होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर भी होगा, ग्राफ होगा, तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो अभी हम लोगों को एक्सप्लोर करते जाने हैं, जो एक बार में नहीं हो सकता। और भी चैप्टर्स जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे तो उसको हम लोगों को अप्लाई करना आसान रहेगा। फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन कोशिश करता हूं आपको दिखा सकूं या इनफैक्ट ये कहूं कि आप सॉल्व करें। ये इक्वेशन हैज 4 पॉजिटिव रूट्स, फाइंड a कॉमा b।
सर वो ax स्क्वायर है ax क्यूब है। स्क्वायर। दो क्वेश्चन सर। वेरी गुड अस्का। एवरीवन गो अहेड, थोड़ा फास्ट करें। It is Hitans, very good.
Raska again, very good. Ayush, very good. Asmi, very good.
डन। मैं स्टार्ट कर लूं? लास्ट 2 मिनट। आए देखिए, फर्स्ट वन याद हो आपको कि हम लोगों ने कई बार ये बात की है, अब मेरे ख्याल से अब तो याद हो जाना चाहिए। ये पॉजिटिव आना अपने आप में बोलता है कि एमजीएम कुछ कर सकता है, राइट। अब देखें एमजीएम इसमें क्या कर सकता है। अगर इसके 4 रूट्स हैं तो यहाँ से मेरे को सम ऑफ द रूट्स जो मिल रहा है बाई 4, राइट, वो मिल रहा है 1, क्योंकि 4 बाई 4 1 हो गया। एंड वी नो दैट ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, जो कि मिल रहा है अगेन 1, राइट। मतलब ये दोनों के बीच में इक्वलिटी साइन आ गई, मतलब am इक्वल टू जीएम हो गया। और अगर am इज इक्वल टू जीएम हो गया तो ये तभी पॉसिबल है व्हेन ऑल द वैल्यूज आर सेम, मतलब x1 x2 x3 x4 x5 सबकी सब वैल्यू सेम होगी, तो a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू फिर से -4 होगी। How many of you got right? Write down yes in chat, please. अब इन चीज़ों को आपको यूज़ करना चाहिए, हम लोग काफ़ी अधिक ये कर चुके हैं, राइट। नेक्स्ट, यस नमन। सर वो पहला वाला वापस समझा दो, नहीं समझा। बेटा am होता है ग्रेटर देन इक्वल टू gm होता है, और अगर am इज इक्वल टू gm आ जाए ना तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये तभी पॉसिबल है जब जितने भी आप वैल्यूज ले रहे हो am के या gm के सब इक्वल हो जाए। यहाँ जैसे मैंने 4 वैल्यूज x1 x2 x3 x4 ले लिया, वो चारों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगे, तो आई एम सेइंग कि ओके बोथ आर गुड, राइट। तो अगर चारों के चारों रूट सेम है तो ये प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम होता है, ये प्रोडक्ट टेकन 3 एट ए टाइम होता है, और सभी की वैल्यूज क्या है 1 1 1 ही होगी। तो 1 1 1 रख दिया तो ये -4 आ जाएगा, ये +6 आ जाएगा। ओके सर। एम जी एम एकदम ख्याल रखना, पॉजिटिव आते ही तुरंत रिएक्शन जाना चाहिए एम जी एम के लिए, राइट। सेकंड क्वेश्चन, इसे भी ध्यान से देखो, ये भी बहुत बड़ा हिंट है। यहाँ से 2 बातें मेरे को गिवन है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है 6, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ रही है -2, राइट। A10 का मतलब है अल्फा टू द पावर 10 माइनस बीटा टू द पावर 10 -2। -2 को अगर मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ प्लस अल्फा बीटा, राइट, -2 को अल्फा टू द पावर 8 माइनस बीटा टू द पावर 8 अपॉन 2a9 को अभी ऐसा ही रहने देता हूँ, क्योंकि आप पता चलेगा। इसके साथ में इसका कॉम्बिनेशन बनाओ तो अल्फा टू द पावर 9 मैंने लिया, अल्फा माइनस बीटा आ गया, माइनस बीटा टू द पावर 9 मैंने कॉमन ले लिया, अल्फा माइनस बीटा आ गया। ध्यान से अगर आप देख पा रहे हो तो केवल अल्फा माइनस बीटा मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ a9/2 a9 आ गया, दोनों कैंसल, अल्फा माइनस बीटा बाई 2। इससे सिंपल बातें क्या हो सकती है, अल्फा माइनस बीटा का मतलब होता है रूट डी बाई ए, रूट डी, डी यहाँ पर क्या आ रहा है b² माइनस 4ac 36 प्लस 8 जो भी आया, प्लस बीटा आएगा ना, हाँ तो प्लस बीटा आना चाहिए, अल्फा टू द पावर 10 प्लस अल्फा 9 बीटा ना। ना, ये एकदम क्वेश्चन पे एकदम ख्याल रखना कि आपको जो कांस्टेंट यूज करने हैं वो आप कैसे यूज कर पा रहे हो।
राइट, यहाँ पर प्लस आ जाएगा ना। अब कैसे यूज कर पा रहे हो, केवल यही आपको ख्याल पे रखना कि वो कांस्टेंट कैसा यूज हो पा रहा है। कांस्टेंट यूज होते ही अपने आप में ना वर्किंग अपनी सबसे सही सी हो जाती है बिना कोई दिक्कत का, राइट। बस कांस्टेंट आपको यूज किस तरह से करना है वो आप ध्यान से रखना कि कांस्टेंट आपने अगर अच्छे से यूज कर लिया है, राइट, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है आपके पास, तो यू कैन पुट द वैल्यूज, राइट। बट थीम क्वेश्चन का पकड़ने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली व्हाट इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन। अगर वो हमारे को पकड़ में आ जाता है कि कहाँ से इस क्वेश्चंस को वर्किंग देनी है, तो ये सब क्वेश्चन थोड़े सिंपल क्वेश्चन में कहलाएंगे। ओके एवरीवन, ठीक है। हाँ, ये ऊपर वाले क्वेश्चन नोट कर लो जल्दी से प्लीज। डन। बहुत सारी वैरायटी मैंने बता दी है आपको, बस ये सभी चीज़ों को ख्याल रखने की ज़रूरत है और अप्लाई करने की ज़रूरत है। अब जितने अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे क्वेश्चंस, इन्हीं में से कहीं ना कहीं आते हैं। कुछ चीज़ें और हैं जो हम लोग आगे जैसे जैसे स्टडी करते जाएंगे, देन यू विल गेट टू नो कि एग्जैक्टली क्या यूज़ होना है, कैसे यूज़ होना है। कुछ क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको करवाया था, लेकिन ये जितना बार भी करवा के आपको परफेक्ट किया जाए उतना कम है। जैसे a प्लस एक्स इंटू बी प्लस एक्स अपॉन सी प्लस एक्स, वेयर x greater than minus c and a greater than c, b greater than c, ये गिवन। x greater than c भी गिवन है, राइट, जरूरत है नहीं, बट prove that minimum value of this is, prove that they do under root of a minus c under root of b minus c the whole square, minimum value of this।
Done. Done, everyone. C. C प्लस एक्स को मैंने टी एज्यूम कर लिया, राइट। एक्स की वैल्यू आ गई टी माइनस सी, ए माइनस सी प्लस टी, ए माइनस सी ग्रेटर देन 0 है, बी माइनस सी प्लस टी होल थिंग डिवाइडेड बाई टी, राइट। ये गया ए माइनस सी इंटू बी माइनस सी प्लस टी प्लस ए प्लस बी माइनस 2c, कुछ ऐसा। पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर है, ए एम जी एम लगाया, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू राइट, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वैल्यू ए एम इज इक्वल टू जी एम, अगर इसकी वैल्यूज मैंने लगाया, राइट। मिनिमम वैल्यूज की यही होगी, जो कि है ए माइनस सी का अंडर रूट प्लस बी माइनस सी का अंडर रूट का होल स्क्वायर। कितनी बार भी ये सब क्वेश्चन करो, जब दिमाग में जब तक ना बैठ जाए काम नहीं बनेगा। ओके, कितने लोगों का सही रहा? राइट डाउन यस इन चैट प्लीज। क्लियर है? इज इट ओके एवरीवन? मैं आगे बढ़ सकता हूँ? यस शायद कुछ 1 मिनट भी आया। यस सर, डन। राइट, कभी कभी क्वेश्चन में आपको काफी अधिक फंसाया जाता है एंड वहां पर बचने के उपाय थोड़े से हमें ही खुद तरीके से निकालने पड़ते हैं। जैसे मतलब इट्स फ्रैंकली स्पीकिंग इट्स एंडलेस, राइट। जब भी कुछ बोलता हूँ तुरंत एक चीज और दिमाग में आता है, अगर आपको ये भी बता दूं तो अच्छा रहेगा, फिर लगता है कहीं जल्दी ना हो जाए, तो थोड़ा सा रुकना कभी कभी जरूरत हो जाता है। जैसे ये क्वेश्चन फिर भी थोड़ा अच्छे क्वेश्चन में एक है। एक बात का केवल यहाँ पर ये ख्याल रखा जाए कि हम लोगों को 4 डिग्री इक्वेशन स्टडी नहीं करना होता, हम लोगों को 4 डिग्री इक्वेशन स्टडी नहीं करना पड़ता, बट फिर भी दिस इज द क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक, राइट। अब ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है एंड व्हाट दे आर सेइंग, द सेट ऑफ रियल पैरामीटर ए फॉर विच द इक्वेशन हैज ऑल रियल रूट्स, राइट। ए की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए जिसपे इसके रियल रूट्स हों, सभी के सभी रियल रूट्स हों। आपके पास मैं पूरा टाइम छोड़ रहा हूं 5 मिनट्स का, राइट। यस इसका बोर्ड पे कुछ दिख रहा है या नहीं? रीज्वाइन करो, रीज्वाइन करो, आँख खोलो। यस सर बोर्ड पे कुछ दिख नहीं रहा।
आँख वही मैं बोला, आँख खोलो तो देखो दिखेगा। ओपन योर आईज। नहीं दिखा अभी भी? नहीं सर। रिज्वाइन करो। सभी को दिख रहा है? Yes, sir. रिज्वाइन करो। x टू दी, बट रिज्वाइन करना बेटर रहेगा बेटा, रिज्वाइन। ओके, able to see this? Okay, start.
मैं स्टार्ट करूं? पहली बार जब ये क्वेश्चन मिला था मेरे को, ये बड़ा डरावने तरीके से मिला था। जो जहां पर आपको a दिख रहा है वहां a नहीं होके √2 था, मतलब ये √2 था, ये √2 था और इसके जगह पर 2 था। अब उस समय ये सोचना कि ये √2 नहीं ये a है, अपने आप में बड़ा खतरनाक सा जगह था। बट ठीक है, कभी कभी कुछ चीज़ें सीखने को मिल जाती है। तो मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, मैं a के लिए क्वाड्रेटिक बना रहा हूँ, राइट। ये मेरा a के लिए क्वाड्रेटिक बन गया, राइट। इस a के क्वाड्रेटिक को a इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √(b² - 4ac cancel by 2a. So a is equal to 2x² + 1 plus minus 2x - 1. तो a के लिए मेरे पास दो बातें आ गई, राइट, बाई 2। एक इक्वेशन मेरे पास बन गया x² + x का, राइट, और दूसरा बन गया a इज इक्वल टू x² - x + 1 का, राइट। दोनों में ऑब्वियसली ये फैक्टर होना जो इम्पॉसिबल सा लग रहा था वो हमने कर डाला। इसका d1 > 0, d2 > 0। रियल रूट्स के लिए प्यारा सा सिंपल सा यही कंडीशन होता है। यू नो दिस, यू कैन फाइंड दिस इजीली। प्लीज नोट डाउन एवरीवन। वेरी गुड सुबह। 3/4 to infinity। ये और इसके अलावा इस तरीके के काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी धीरे धीरे। वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। होपफुली आप लोगों ने बुकलेट कंप्लीट कर लिया होगा।